हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दिस इज सूरज और हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसी की सीरीज देख रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग 911 क्वेश्चन के आगे देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर टूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन? 1 बजट, 2 सिविल सर्विस कोड, 3 ऑडिट बैक कैग और 4 रोल मेकिंग पावर। तो करेक्ट कोड को चुनना। ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4, ऑप्शन सी 1 एंड 4 और ऑप्शन डी 2, 3 एंड 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4। सो बजट, सिविल सर्विस कोड एंड रूल मेकिंग पावर आर टूल्स ऑफ executive control over administration. So next question is here. The most important device of supplying power to the judiciary to invalidate a statute on India is provided by A. The directive principles of state policy, B. The fundamental rights, C. Article 350 and 351 और D. Prerogative rights. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा the fundamental rights. So the most important device of supplying power to the judiciary to invalidate a statute in India is provided by the fundamental rights. So correct option is option B. Next question is here. Which of the following are emphasized by RIGS to compare administrative systems? 1. Model building, 2. Cultural dimension, 3. Ecological perspective, 4. Structure functional approach. तो करेक्ट कोड को चुनना। ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4, ऑप्शन सी 1, 3 एंड 4 और ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4 यानी ऑल ऑफ दीज। जिसमें करेक्ट स्टेटमेंट है 1, 3 एंड 4. सो following are emphasized by RIGS to compare administrative system. These are model building, ecological perspective and structure functional approach. So next question is here. In which one of the following countries is control over the administration through questions and motion of no confidence is not possible? Option A Pakistan, B USA, C Britain और D France. This is correct option होगा option B USA. So in USA, control over the administration through questions and motion of no confidence is not possible. Next question is here. In which of the following countries can a citizen get speedy justice against the wrongful acts of officials? Option A India, option B USA, option C France और option D England. तो in France, a citizen gets speedy justice against the wrongful acts of officials. So इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. Which of the following functions are performed by the central secretariat? सेंट्रल सेक्रेटरीट के द्वारा कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं? 1. Issuing proclamation of emergency, 2. Policy making and its modification, 3. Work concerning legislation, 4. एक्सरसाइजिंग फिनेंशियल कंट्रोल. तो करेक्ट कोड को चुनना है. ऑप्शन ए 1 एंड 4, ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3, ऑप्शन सी 3 एंड 4 और ऑप्शन डी 2, 3 एंड 4. तो फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय सेंट्रल सेक्रेटरीट आर 2, 3 एंड 4. सो पॉलिसी मेकिंग एंड इट्स मॉडिफिकेशन, वर्क कंसर्निंग लेजिस्लेशन, एक्सरसाइजिंग फिनेंशियल कंट्रोल. दीज आर द functions performed by the central secretariat. So this question correct option is option D. Next question is here. Which of the following are not subject to the detailed audit by the CAG of India? 1. All cooperative societies, 2. All public corporations, 3. All civil expenditure, 4. All defense expenditure. तो correct code को चुनना. Option A 1 and 2, option B 3 and 4, ऑप्शन सी 2 एंड 3 और ऑप्शन डी 1 एंड 4. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1 एंड 4. सो फॉलोइंग आर नॉट सब्जेक्ट टू द डिटेल्ड ऑडिट बाय द कैग ऑफ इंडिया. दे आर ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड ऑल डिफेंस एक्सपेंडिचर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. द कैग ऑफ इंडिया सबमिट्स 3 रिपोर्ट्स टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एमंग देम? ऑप्शन ए audit reports on finance accounts,
ऑप्शन बी ऑडिट रिपोर्ट्स ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ऑप्शन सी ऑडिट रिपोर्ट्स ऑन कैपिटल अकाउंट्स, और ऑप्शन डी ऑडिट रिपोर्ट्स ऑन कॉमर्शियल एंड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑडिट रिपोर्ट्स ऑन कैपिटल अकाउंट्स। सो द कैग ऑफ इंडिया सबमिट्स 3 रिपोर्ट्स टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, पर उनमें से एक जो नहीं है वो है ऑप्शन सी यानी ऑडिट रिपोर्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी, इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है गवर्नमेंट कंपनी का। ऑप्शन ए इट हैज़ एन ऑडिट बोर्ड ऑफ इट्स ओन, ऑप्शन बी इट इज़ ए बॉडी कॉर्पोरेट, ऑप्शन सी इट इज़ ओन्ड बाय द स्टेट, ऑप्शन डी इट्स एम्प्लॉयज आर नॉट सेल्फ सर्वेंट्स। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इट हैज़ एन ऑडिट बोर्ड ऑफ इट्स ओन। सो दिस क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन इज एन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द स्टेट सेक्रेटरीट, इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं स्टेट सेक्रेटरीट का। ऑप्शन ए टू असिस्ट द मिनिस्टर्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी, ऑप्शन बी to act as a channel of communication between one government and another, option C to prepare drafts of legislation to be introduced in the assembly, or option D to assist the legislature in its secretarial work। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी टू असिस्ट द लेजिस्लेचर इन इट्स secretarial work। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ये अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए और आने वाले वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। थैंक्स।